माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, oath or affirmation. Nominated Shri Suresh Gopi. I, Suresh Gopi, having been nominated a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Welcome. Congratulations. Can I take your blessing? Yes, of course. Thank you. Honorable members, as you might be aware, the Indian Space Research Organization, ISRO, yesterday successfully launched the 7th satellite of the Indian Regional Navigation Satellite System IRNSS-1G using PSLV C-33 on the 28th of April 2016 from the Satish Dhawan Space Center in the Sriharikota in Andhra Pradesh. IRNSS-1G is the 7th and the last satellite in the series of the constellation of regional navigation satellite system, and the successful launch of it has catapulted India into an elite club of nations with their own satellite navigation systems. This has added yet another precious milestone in the success story of the Indian space history. The credit for this landmark achievement undoubtedly goes to our scientific community, particularly those working with ISRO. On behalf of the House and on my own behalf, I congratulate the scientists, engineers, and the technicians who were associated with this project, and do hope that they will continue to scale greater heights and make the country proud of their achievement. We wish them all success for their future endeavors. Papers to be laid on the table. Shri D.V. Sadananda Gowda. Sir, on behalf of my senior colleague, Shri Sadananda Gowda, I rise to lay on the table of the House the paper listed against his name at serial number 1 in today's revised list of the business. Shri Ramvilas Paswan. महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के आगे उल्लेखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं। श्री रविशंकर प्रसाद। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के समक्ष उपस्थित दस्तावेजों को सभा के पटल पर रखता हूं। श्री मोहन भाई कल्याण भाई कुंडारी। कागज के सबूत में आज की कार्यसूची क्रम संख्या 5 से 4 से 4(1) तक उल्लेखित कागज सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। श्री हंसराज गंगाराम अखीर। माननीय महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल रखने की अनुमति की। श्री मनोज सिन्हा। Sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से मेरे साथी डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी की ओर से आपके कार्यक्रम की सूची के क्रम संख्या 7 पर उनके नाम के आगे उल्लेखित कागज सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। बदल हो गया। ओके, ऑल राइट। श्री मुख्तार अकबर नकवी। Sir, on behalf of my colleague Shri Jain Sinha, I rise to lay on the table of the House the paper listed against his name, serial number 2, in today's revised list of business. A report of the Department of Later Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare. Professor Ram Gopal Yadav. Shri Jairam Ramesh. So I rise to lay on the table of the House papers listed against my name in today's revised list of business.
Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. Dr. Kanwardeep Singh. Sir, I beg to present the following reports, Hindi and English versions of the Department-related Parliament Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. The 235th report on demands for grants of Ministry of Civil Aviation for 2016-17. The 232nd report on demands for grants 16-17 of the Ministry of Tourism. Thank you. Motion for election to the Central Advisory Committee of the National Cadet Corps. Rao Indrajit Singh. Sir, on behalf of my senior colleague Shri Manohar Parikar, I rise to move that in pursuance of clause 1 of subsection 1, read with subsection 1A of section 12 of the National Cadet Corps Act 1948, this House do proceed to elect in such manner as the chairman may direct one member from amongst the members of the House to be a member of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps. Motion moved. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. Motion for extension of time for presentation of the report of the Select Committee of the Rajya Sabha on the Prevention of Corruption Amendment Bill 2013. Sri Anil Madhav Dave. Okay, Sri Bhupendra Yadav. महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि राज्यसभा की भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 संबंधी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाया जाए. Motion moved. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. Statement regarding government business. Sri Mukhtar Abbas Naqvi. महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूचित करता हूं कि सोमवार 2 मई 2016 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिए जाएंगे. आज की कार्यसूची में शामिल निम्नलिखित में से बकाया सरकारी कार्य की किसी मत पर विचार, लोकसभा द्वारा पारित किए गए रूप में विनियोग रेल विधेयक 2016 पर विचार और लौटाना 2 घंटा, लोकसभा द्वारा पारित किए गए रूप में खान और खनिज विकास विनियम संशोधन विधेयक 2016 पर विचार और पारित करना, निम्नलिखित मंत्रालयों के कार्य पर चर्चा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, बाल श्रम संशोधन विधेयक 2012 पर विचार और पारित करना, लोकसभा द्वारा पारित किए गए रूप में भारतीय न्यास संशोधन विधेयक 2015 पर विचार और पारित करना, लोकसभा द्वारा पारित किए गए सूचना प्रदाता संरक्षण संशोधन विधेयक 2015 पर विचार और पारित करना. Now, my test to be raised with permission, 0 hour submission. Sri Pawan Kumar Vama. Sir, I have given a notice on the GSPC scam. One by one. Sir, I have given a notice on GSPC scam. Under what rule? On GSPC scam. What rule you have given notice? But I want to know whether I will be able to raise the matter. You tell me under what rule you have given. Sir, I have given a notice, sir. No, notice should be under some rule. Under the relevant rule, I have given a notice. You have to, when you say you are given a notice, you have to say under what rule. Sir, I have given a notice. I gave it yesterday. I have not heard anything. Is it for 0 hour? It's a very important matter. It involves 20,000 I will help you. No. 20,000 crores of bank money. No, you are not allowed. One state I am government not allowing you. No, that means first understand, is it a 0 hour notice or a notice under some other rules? Tell me. 4 zeros, 20,000 No, crores. no, nothing going. Tomorrow, no. You find out and tell me under what rule you are given, then I will reply to you. Yes, I will call you. What is your problem? 187, breach of privilege. Breach of privilege notice I have given today under rule 187. So against Mr. Ghulam Nabi Azad. Okay, you are given notice. I will allow you. Sit down. No, let me deal with it. No, please. Please allow me to deal with that. Right to the house. Please allow me to deal with that.
Now, Hanumanta Rao, please allow me to deal with that. Sit down. You are my friend. Sit down. Pramod, you sit down. No, Pramod, you sit down. No, let me deal with that. Breach of Then you come here. precedence. See, sit down. I heard you. Sit down now. Now, sit down. Now, please. Hanumanta Rao, please sit down. I will call you. Please take your seat. No. You see, I am on my legs. I am replying to him. No, I will see. No, please. I will call you. I will give you a chance. Sit down. Now, number one. Now, yes. I know. Number one, Jairam Ramesh. No. I am addressing his case. I allowed him. You sit down. I allowed him. No. Willfully misleading the House. Don't be so thin-skinned. What is the point of order? First all of you take your seat. Then one of you can raise. Okay, what is the point of order? Yes. What is the point of order? Point of order. I told him I will allow him. Sit down. Sir. Let me deal with. Okay, if he want to say in this. Sir, my point of order, sir. Sit down. Sit down. Nothing will go on record. That is not going on record. Sir, what is your point of order? Sir, all of you sit down. What is your point of order? My point of order is when the chair. What is your point of order? I am asking here, not to you. No, I am sitting down, but why is he standing up? No, I will decide that. You sit down. I will decide that. What is your point of order? My point of order is when the chair, when the chairman is on his legs, the vice chairman is on his legs. Sir, why is the mic of one honorable member only on? It is always on. I have noticed it for the last 2 days. So why is that? So when the chair is on his legs, why is his mic on? Now sit down. Why is he standing? Okay. Sit down. Wait. Sit down. Now the point is, you see, now Mr. Please. Wait here, please. Now please. Now listen. Please, I will, Pavan Kumar, see, I have called you, I will give you a chance. Don't worry. I am trying to give you a chance. For that house should be in order. That's all what I am trying. See, I want every member to express his or her views. I am nobody to prevent, and I will not do that. I want to create a situation by which all of you can do it. That's all what I am trying. Please cooperate with me. Now see, other point. Tiwari, you are going too much, I am telling you. Yeah, see, point of order of Kumari Shalja. You see, his mic may be on because I asked him to explain his position. When he stood up, I called his name. I took his name and I asked. So it is, now it is for the office to keep his mic on. So that is why his mic is on. Number one. I called him. First I called Jairam Ramesh. I heard him. I disposed him. I said, no, sorry. No, your subject. No, listen. No, sorry. I withdraw that word. I withdraw that word. Sit down. No, please call. I withdraw that word. Jairamji, I withdraw that word. Okay. Now listen. See, I dealt with that because without knowing the rule, I cannot give a ruling. That is the whole point. But if you give the rule, I will give the ruling. Then I called Subramanian Swamy. So no, that I know. See, it is all after I call you, all this happened. You are there, I know. Then Subramanian Swamy, because he stood up and asked about his privilege notice. Now please, no, listen. He has every right to ask. If he has given a privilege motion notice, he has every right to ask. It is my duty to respond to it. Therefore, I wanted to respond it.
That is why this mic was on. There is nothing wrong with that. Now, I will give the response. Now, sit. I am giving the response. If you are given a privilege notice, there is a rule by which privilege notice are being dealt with. The privilege notice will be first examined by the Honorable Chairman. If he prima facie finds that there is some case, he will refer it to the privilege committee. So, if you are given notice, it is under the consideration of the office and the chairman will examine it and take a decision whether there is a prima facie case or not. That is the portion. Now, Pawan Kumar Verma, nobody else. Pawan Kumar Verma. Thank you, sir. I hope I won't be disturbed now. Sorry. Sir, I was raising an issue, and I At was least I will not disturb you. So I was raising an issue that in the month of March, there was a visit by the Nepalese Prime Minister KP Sharma Oli to Beijing. And as you are aware, sir, several agreements were signed during that visit. It is particularly relevant for us that among the agreements that were signed, there were an agreement to provide multiple train routes between China and Nepal and to grant Nepal transit rights through China. Now, obviously, sir, this attempt to bypass the geographical interface between Nepal and India and to some extent the geographical dependence of Nepal on India, this attempt to bypass it by these kind of agreements between China and Nepal have serious strategic implications for us. What surprises me, sir, is the response of our Ministry of External Affairs, which seems to believe that because 98% of our trade goes through China right now, there will be no impact of these agreements and the resentments created in Nepal by the unofficial 5-month blockade will have no strategic implications. I want to say to you, sir, that even though Nepal may be at the mercy of geography, as somebody put it, it should not become the victim of diplomatic complacency. This is my point to you. And I also want to raise the question that in the light of these agreements, what are we doing in order to further strengthen our relationship with Nepal, including in areas such as greater access to ports, better border roads, easier trade and transit rights, and certainly a greater interface and interaction with the Nepalese political leadership. That's one part of it, sir. The second part is what is China's nefarious game going on in this region. I say this with great respect, and we respect our relationship with China, sir. Sir, you are aware that China still gives staple visas to those from Arunachal. You are still aware that they have stalled the Maulana Masood Asar's matter being taken up in the UN. And here we have a government that first grants a visa to a Uyghur dissident, so-called, and having granted it, withdraws it. What is our relationship with China? Are we aware of what is going on between China and Nepal? And are we aware of what is going on between China and Pakistan? So, sir, my question, sir, to you simply is this. I think that sometimes this government's eye is off the strategic ball in terms of diplomacy. We saw the crisis unfold in Nepal, and now the response to the agreements China and Nepal have signed have met with the kind of complacency rarely seen in the chancelleries of the world. I urge through you, this government, to respond to the fact that these agreements have been signed and they have a major impact on our strategic interests with Nepal and in the region. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yeah. Yes. Yes. All those who associate may be, all the names may be added, all the names. Sri Bhupender Singh. Sri Bhupender Singh. Sir, hey, Hanumanta. Hanumant. Rao. Don't encroach upon others. Hanumanta Rao, sit down. No, please. Use. Sir, timing, sir. बोलो. Deputy Chairman, sir, आप जानते हैं कालाहांडी, बलांगीर, कोरापुट एक स्पेशल रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो आइडेंटिफाई किया। कालाहांडी में एक प्रोजेक्ट रेलवे का, सर नरला मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी पहले, वहाँ पे चप्ताखंड गांव में एक मैन्युफैक्चरिंग शॉप कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री का वहाँ पे सरकार ने करने की
घोषणा की थी पिछली सरकार ने, लेकिन उसको बाद में जब हमने आरटीआई में पता किया तो उसमें बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में उसको वहां से शिफ्ट करके आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम लिया जा रहा है। इस बात को लेके वहां एजिटेशन चल रहा है मेरे जिले में कालाहांडी में, और हमारी पार्टी बीजेडी के सभी विधायकों ने भी इसको असेंबली में और सभी पार्टियों के सभी दलों के सदस्यों ने इसको विधानसभा में उठाया ये मुद्दे को। और अभी अभी हमारे रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी वहां गए थे भुवनेश्वर, तो चीफ मिनिस्टर को जब से मिलने गए तो चीफ मिनिस्टर ने भी माननीय नवीन पटनायक जी ने भी इस मुद्दे को उनके सामने रखा। तो उन्होंने वहां अभी कहा है कि 1.5 महीने के अंदर हम इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, एक कमेटी बिठाएंगे। सर बात यहाँ पे ये है, हम कोई ज्यादा चीज मांग नहीं रहे हैं, जो चीज हमें मिल रही थी वो भी हमसे छीनी जा रही है, ये एक विडंबना है। सर यहाँ प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बनाया गया। ये नीति आयोग किसके लिए बनाया गया? ये हाथ की 5 उंगलियां जैसे एक नहीं है। तो जिस एरिया में आज आपने ये भारत सरकार ने, पिछली सरकार ने, यूपीए सरकार ने जब उसको एक वहां पे सबसे पिछड़ा इलाका करके माना गया, वहां एक रेल का छोटा सा सर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आना था। क्या ये बात सच है? फरवरी 2014 फरवरी 25 तारीख को वहां मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवे ने जाके क्या ये फाउंडेशन स्टोन देना था? ये बात कहां तक सच्चाई है इसमें, ये भी मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से सरकार से जानने के लिए। और यहाँ पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा इस बात को थोड़ा गहराई से लें। यहाँ पे स्टेट्स सर रीजनल इम्बैलेंसेस की बात आज सारे हिंदुस्तान में राज्यों के बीच हो रही है, और राज्यों के बीच इम्बैलेंस की बात तो दूर की बात है, यहाँ केंद्र से भी अगर रीजनल इम्बैलेंसेस होती है। इसीलिए हमारे सरकार, हम लोग जहाँ पे केंद्र हमसे नेग्लेक्ट करती है तो वहाँ हमारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी उसको, और हमारे विधायक सब वहाँ बीजेडी के इस बात को बार बार बोलते हैं कि केंद्र हमको नेग्लेक्ट कर रही है। हम ऐसे कोई आवाज नहीं दे रहे हैं, फॉल्स प्रोपोगंडा नहीं कर रहे हैं, हम इशू बेस के ऊपर बोलते हैं। ओके, टाइम ओवर। श्री प्रमोद तिवारी। माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही गंभीर समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा जो है, उसकी शान आन बान के लिए हमारे जवानों ने अपना जीवन अर्पित किया है, और उसी के नेतृत्व में जो एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई इस देश में, कांग्रेस के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ। परंतु जब से भाजपा की सरकार आई है, शिक्षण संस्थाओं में, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो जेएनयू हो, और चाहे एनआईटी हो, कश्मीर में हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद इससे जुड़े हुए संगठन वहां पर एक ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिससे बिखराव उत्पन्न हो। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राष्ट्रीय ध्वज की बात भारतीय जनता पार्टी अपने दोहरे आचरण के कारण दूसरे हिस्सों में कुछ और करती है, श्रीनगर में कुछ और करती है। 6 अप्रैल को, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल को 2015 को, 16 को वहां एनआईटी के छात्रों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया, और वो चाहते थे कि उस ध्वज को फहराने के लिए उन्हें अनुमति मिले। पर मुझे कहने में बहुत दुख हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए संगठन के लोग, इनकी सरकार चूंकि कश्मीर में भी है, इनकी सरकार देश में भी है, और इनकी वो नियत कि छात्र जहां पर हैं और जो उनकी विचारधारा से मेल न खाते हों उनको कुचला जाए, तो इनकी जुड़े संगठनों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने वाले श्रीनगर की धरती पर एनआईटी के छात्रों पर, जिसमें विकलांग छात्र भी शामिल थे, जिन पर लाठीचार्ज किया गया, मारा पीटा गया, जो गिर भी गए थे उनको भी मारा गया, और आज वो छात्र आकर यहां पर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मांग क्या कर रहे हैं कि हमें राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने दिया जाए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें राष्ट्रीय तिरंगा नहीं फहराने दे रही है। यही संघर्ष है छात्रों के बीच में। वो तिरंगा जिसके लिए लोगों ने जान और बलिदान दिया हो, उस पर अगर भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है, देश के हिस्सों में कुछ कहे, कश्मीर में कुछ कहे, और ये भी हम ना भूलें, बहुत ही
और अच्छे वातावरण में, जब वहां कांग्रेस की सरकार कश्मीर में थी तो एक वातावरण बनाया गया था। स्थानीय लोग संघर्ष नहीं करना चाहते, लेकिन इनकी जो सत्ता लिप्सा की आदत है, जो ये सत्ता के भूखे लोग हैं, ये शिक्षण संस्थाओं में जो एक जहर बो रहे हैं, एक कैंसर बो रहे हैं, उसका नतीजा हो रहा है कि देश के शिक्षण संस्थानों में ये राष्ट्र के विरोध में आचरण करने वाले लोग हैं, जैसे राजा साहब खड़े हुए हैं। ये मैं कहना चाहता हूं, ये तिरंगा नहीं फहराने दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं आपसे बहुत ही विनम्रता पूर्वक कि ये दोहरा आचरण जो भारतीय जनता पार्टी का है कि तिरंगा नहीं फहराने दे रहे हैं, इसकी निंदा करता हूं और इनसे कहना चाहता हूं। टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर। श्री प्रभात झा, श्री प्रभात झा, श्री प्रभात झा, टाइम ओवर। श्री प्रभात झा, now Prabhat Jha, all of you resume your seats. I have called Prabhat Jha. No, Prabhat Jha का टाइम लेते हैं। उप सभापति महोदय, आप लोग प्रभात झा का टाइम लेते हैं, आप बैठिए। उप सभा, अरे सुनिए प्रभात झा, आप लोग प्रभात झा का टाइम लेते हैं, आप बैठिए। नहीं सर, मेरा टाइम। बैठिए। श्री प्रभात झा प्लीज स्टार्ट। प्रभात झा प्लीज। अरे सुनो, व्हाट इज दिस? दैट मेंबर, सिट डाउन दैट मेंबर। उप सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक गंभीर मसले पर लाना चाहता हूं, और वो मसला है कैंसर रोग, जिसके सुनते मात्र से किसी परिवार में कोई मरीज होता है तो वो सारा परिवार दुखी और घबरा जाता है, और जो मरीज होता है वो मरीज समझने लगता है कि अब मेरा मृत्यु निकट है। ऐसे असाध्य रोग के बारे में एक रिपोर्ट आई है कि देश में 1 साल से लेकर 14 साल के बच्चे सर्वाधिक, टाटा मेमोरियल से वहां के कैंसर रिसर्च ने एक रिपोर्ट दी है, और उसमें कहा है कि प्रतिदिन 50 बच्चे इस मौत से मर जाते हैं इस उम्र के, और वर्ष भर में 18,000 से अधिक बच्चों की मौत होती है। इसलिए इन मामलों में अगर एक एल्डर एज में, गंभीर उम्र में या प्रौढ़ उम्र में ये रोग डिटेक्ट होता है तो समझ में आता है कि चलो एक जिंदगी का एक हिस्सा उसने जी लिया। लेकिन 1 साल के बच्चे से लेकर 14 साल के बच्चे, विदेशों में भी इसका एक इलाज हुआ है, इसकी एक नीति बनी है और वो डिटेक्ट किया जाता है। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि पहले तो ये शोध जो किया गया है टोरंटो के विश्वविद्यालय में और टाटा कैंसर में, इनको आप पूरी तरह से इस शोध का अध्ययन करें और देश में आने वाली पीढ़ी 1 साल के बच्चे और 14 साल के बच्चे का रोग निवारण हो, क्योंकि कैंसर डिटेक्ट करना और उस शोध पर अध्ययन करके इसके लिए कोई नेशनल पॉलिसी बनाई जाए जिससे आने वाली पीढ़ी कम से कम कैंसर से वंचित हो। अगर पता लगे तो स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में ही उसका इलाज हो सके, यह मेरी सरकार से मांग है। और इतना ही नहीं है, कैंसर के मामले में एक नहीं अनेक चीजें होती हैं। हर अस्पताल में इसका एक वार्ड बने, एम्स में है, टाटा मेमोरियल है, बहुत जगह 14-15 यूनिट्स इसके चलते हैं, देश में अस्पताल चलते हैं, लेकिन 1 से 14 साल के बच्चे को नंबर लगाना पड़ता है। उस नंबर में क्या होता है, जब उसके इलाज की स्टेज बिगड़ जाता है तो कैंसर बहुत तेजी से फैलता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मेरा निवेदन है कि ऐसे मसलों पर सरकार संवेदनशील होकर उनके इलाज की तात्कालिक व्यवस्था करे, जिससे आने वाली पीढ़ी कैंसर से बचे और 1 से 14 साल का बच्चा कैंसर रोग से मुक्त हो। यह सरकार से Yes, the entire house is one with this issue. I think the government should take it very seriously. Cancer is so rampant and spreading like anything in the country. And especially in my state, Kerala, it's much more, I am telling you. I don't know why. नहीं सर, आपने जो बात कही है और जो ऑनरेबल प्रभात झा जी ने कही है, निश्चित तौर से कैंसर की समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार बहुत ही तत्परता के साथ कर रही है, और जो चिंताएं व्यक्त की है माननीय सदस्य ने और आपने जो निर्देश दिया है, हम माननीय हेल्थ मिनिस्टर को इस बारे में कहें। ओके, थैंक यू। श्री शरद यादव, श्री शरद यादव। सर,
सियाचिन में 10 जवान अभी दबे हुए हैं। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि सियाचिन के जो इलाका है वो इंसान के रहने की इतनी दिक्कत और तकलीफ वाला इलाका है कि अब तक लगभग जो है 882 लोग इस बर्फ में जम करके शहीद हो गए। ये इलाका जो है वो जब भी भारत सरकार की चर्चा और बहस होती है, खास करके पाकिस्तान से चर्चा हो या ना हो या ना हो, ये इसी सरकार का नहीं है, सब सरकारों का ये रवैया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसी समस्या है जो हमने जिस तरह से रखी है, तो यदि हिंदुस्तान का कभी भी वार्ता, और अकेले पाकिस्तान या नहीं है, यहाँ चीन भी है, और ये ऐसा मसला है जो इंसानियत से, मानवीयता से भरा हुआ है। उनकी तरफ के लोग भी बड़े पैमाने पर यहाँ उनका दब करके, बर्फ़ दब करके, उनके लोग भी जो खास करके जवान लोग हैं, अफसर लोग हैं, यहाँ तो अफसर भी बहुत से बड़े पैमाने पर यहाँ दब करके मरे हैं। अब अभी 10 जवान नीचे हैं, इनके पास 5 मीटर से ज़्यादा देखने की जगह नहीं है, और ये मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। और 882 लोग तो यहाँ शहीद हो चुके हैं। इसलिए एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आसान मामला, पहले भी पाकिस्तान से बात हुई और समाधान हुआ था, लेकिन फिर बिगड़ गया क्योंकि दोनों के बीच में बहुत अविश्वास है। मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी भारत सरकार यदि वार्ता करती, जैसे अभी वार्ता हुई थी, ये उन्हीं बातों पर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं जो उलझे हुए सवाल करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सियाचिन का मामला उन देशों के लिए भी तकलीफ दे, हमारे भी तकलीफ दे। इसलिए आगे आने वाले समय में यहाँ विदेश मंत्री नहीं है। कल मैंने पूछा था, विदेश मंत्री और क्या कहते हैं भारत सरकार का कोई बहुत जिम्मेदार, आप सब लोग बैठे जरूर हैं, करता धरता जो है वो आज लीडर अपोजिशन भी नहीं है। हाँ नहीं, इसलिए ये मामला गंभीर सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले में यदि ये एजेंडा पहले रखेंगे तो इसमें समाधान हो सकता है। जो चर्चा है उस चर्चा में ऐसी बात रखो कि जिससे कुछ रास्ता निकले। ये ऐसा मामला है कि इसमें रास्ता निकल सकता है, और चीन के साथ भी बात करना चाहिए कि सियाचिन में ये कब्रिस्तान जो बना हुआ है, इस कब्रिस्तान को हम लोगों को किसी तरह से भी इसका समाधान निकालना चाहिए। यही मेरी विनती है। ओके, थैंक यू शरद यादव जी। डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी। Mr. Deputy Chairman, the Standing Committee on Information Technology, in its 47th report, which was laid in this House on 7th May 2013, had dealt with the issues arising from paid news. Now, this paid news has acquired the character of a cancer on our democracy. And recently in the Augusta Westland deal also, there has been recently, I think one of the channels, perhaps the NewsX, had published a contract which was signed between with a middleman and the company for managing the Indian press to produce favorable reports for the deal. I have already, of course, given a notice under the short duration clause of, I think, 176. And I'm rising here to request this House and through you, that this is such an important matter that it should be discussed in a short duration discussion in the House. Okay, thank you very much. Thank you. Now, Sri Motilal Vora. माननीय उपसभापति महोदय, बायोटेक कंपनी माइको मोसेंटो बायोटेक लिमिटेड द्वारा किसानों से अवैध वसूली। बायोटेक कंपनी माइको मोसेंटो बायोटेक लिमिटेड
द्वारा किसानों से बिना पेमेंट वाले कपास बीज पर रॉयल्टी के नाम पर फर्जी तरीके से अवैध वसूली की जा रही है। MMBL को BG2 के भारत के पेटेंट नियमों के तहत 20/3/2009 को मंजूरी मिली, किंतु कंपनी ने बिना मंजूरी के ही 2006 से बिक्री शुरू कर दी थी और अवैध तरीके से ट्रेड वैल्यू के नाम पर किसानों से कपास बीज के 450 ग्राम के पैकेट पर 1100 रुपये की अवैध वसूली की गई। आज तक MMBL कंपनी द्वारा BG1 कपास बीज का पेमेंट नहीं लिया गया है और इसे धड़ल्ले से भारत में बेचा जा रहा है तथा कंपनी द्वारा 450 ग्राम का पैकेट जिसका मूल्य 500 रुपये है, वर्ष 2002 में ट्रेड वैल्यू के साथ 1600 रुपये में बेचा जा रहा था और आज 1800 रुपये में बेचा जा रहा है। इस प्रकार किसानों से ट्रेड मूल्य के नाम पर 1300 रुपये की ठगी की जा रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि संबंधित कंपनी द्वारा किसानों को ठगा गया धन अविलंब वसूला जाए तथा उस पर अंकुश लगाया जाए ताकि किसानों के साथ कोई ठगी अथवा धोखाधड़ी न हो सके। Thank you very much. Company who are exploiting the farmers. Okay. As mentioned by the honorable member. Yeah, that is noted. Now, Sri Pallavi Govindar Reddy. Yes, Palwai Govardhan Reddy. नहीं है? My God. Sri KTS Tulsi. Absent. Sri Gulam Basood Balyavi. Sir. Okay. I have to be very careful now in pronouncing because Tyagi is sitting here. मेरा ये कहना है कि आप जो बोलते हैं त्यागी जी ने कहा no. मैं ये कहना चाहता हूँ आप जब बोलते हैं और आप जब नाम में या इसमें उसमें जो आप हिंदी जो है बोलते हैं वो इतनी सुरीली और इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि इसलिए आपको बधाई देना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है लेकिन आप इस सदन में यानी पूरी तरह से अंग्रेजी से ज़्यादा हिंदी बोलते हैं तो भारतीय भाषाओं को बहुत बड़ी मदद आप करते हैं। लेकिन मैं आपको इसके लिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन हिंदी में लिखेगा तो मैं पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी का प्रॉब्लम है यू आर राइटिंग वन वे एंड देन यू आर रीडिंग इन ए डिफरेंट वे। You say BABBER, you can pronounce this way and that way. How do I? हिंदी में लिखो। No, अगर हिंदी में लिखेगा तो मैं ठीक तरह से पढ़ेगा। Okay. Now, Sri, yes. एक आइडेंटिटी का भी वो हुआ है, मिस्टेकन आइडेंटिटी हुई है नीरज सिंह के बारे में। तो मेरा आपसे निवेदन है कि नीरज सिंह और जो हमारे ये हैं इसमें जो है आइडेंटिफिकेशन क्लियर होना चाहिए। ये अलग है, नीरज सिंह अलग है। मिलती है तो क्या करोगे? No, regarding Tyagi, there is no mistaken identification. That is no. Now the Sri Gulam Rasool Balvi. Start from now. शुक्रिया। अब मेरा टाइम start अभी शुरू करो। थैंक यू, शुक्रिया। जनाब सदर साहब, आपके माध्यम से मैं झारखंड में अक़लियतों के साथ जो दुर्व्यवहार और जो जालिमाना रवैया हो रहा है इसकी तरफ मैं पूरे सदन का ध्यान इकट्ठा करना चाहता हूं। सर, 18 मार्च 2016 को गांव नवादा ब्लॉक बालूमाथ थाना हेरंज का ये वाक़या है। वहाँ के गरीब अक़लियत के लोग कि जीने का दो ही रास्ता है, या तो महुआ चुने या महुआ चुन करके बेचे तो उनका जीविका चलता है सर, या मजदूरी, इसके अलावा और कोई दूसरा जीविका नहीं। वहाँ के जालिम मजलूम अंसारी और इम्तियाज़ खान बाज़ाब्ता रसीद ली हुई और बाज़ाब्ता तौर से उनका एक पुराना कारोबार है जो भैंस इस मेला से खरीद कर उस मेला में बेचते हैं, किसानों को देते हैं सर। लेकिन 18 मार्च को सुबह भोर में जब वो मेला जा रहे थे, जिस जालिमाना तरीके से उन लोगों को पेड़ में रस्सी डाल करके फांसी दी गई है सर, मैं समझता हूं अंग्रेजों ने ऐसी सजा भारतीयों को नहीं दी होगी।
और अभी हजारीबाग में। और हैरत तो इस बात की है सर कि वहां के मुख्यमंत्री ने, हमको लगता है कि वहां की अकलियतों को भारतीय नहीं माना, भीख के तौर पर 1 लाख रुपए की बात की और कहा कि 1 लाख रुपया उनको डीसी दे दे। उससे भी ज्यादा सर शर्म की बात है, हमें डर है, मैं पूरे सदन की तवज्जो चाहता हूं, भरोसा टूट रहा अकलियतों का। जिस तरह से वहां का आपके टंडवा थाने का एक थाना पदाधिकारी जो वहां डिपुटेशन में आए थे लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, इंसाफ मांगने आए थे लोग, न्याय मांगने आए थे लोग, थाना में उनकी मोटरसाइकिलों को तोड़ा गया, मजलूम अंसारी के चचा और भाई की दाढ़ियां नोची गई। इससे ज्यादा तो उस वक्त हो गई जब हमारे हुब्बुल वतनी को गाली दिया गया और कहा गया पाकिस्तान जाओ। पाकिस्तान के भेजने वाले कौन लोग हैं? हमें पाकिस्तान भेजने वाले हमारे बाप दादा की तारीख पढ़े, जब मुल्क की आजादी की बुनियाद पड़ रही थी तो उन लोगों ने एक ईंट नहीं रखी थी जो आज हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। सरहद का कौन सा वो इलाका है जो मेरे बाप दादा के खून से लाल नहीं है? ये कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बांट रहे हैं? मैं इंसाफ चाहता हूं। इसी के साथ फिर मैं उस थाना पदाधिकारी के बर्खास्तगी का भी मुतालबा करता हूं। और अभी हजारीबाग 4-6 दिनों से नहीं, आज 15 दिनों से जल रहा है। ऐसा ओके, टाइम हो गया, टाइम खत्म, टाइम ओवर, टाइम ओवर। इट इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। all those who associate name may be added. Yes, all the names will be added. Yes, Sri Hussain Delwai. Next is, you want to react? Yes, Minister wants to react. सर, माननीय सदस्य ने बहुत ही जज्बाती तकरीर की और उसमें वास्तविकता क्या है, सच्चाई है कि नहीं है, सच्चाई है कि नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात सही है कि जितनी उन्होंने जज्बाती तकरीर की है उतनी सच्चाई है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं, उसके बारे में मैं राज्य सरकार से बात जरूर करूंगा कि राज्य सरकार से मैं बात करूंगा कि इसमें उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। आप सुनिए बलिया जी, आप सुनिए, जो मंत्री बोलते हैं वो सुनिए पहले, अब जाइए, पहले सुनिए सर। ये ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन साहब, ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, ये जब 2 लोगों को पेड़ से लटकाया गया था और उस वक्त मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा और मैं धन्यवाद करता हूं सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का, उन्होंने 2 दिन इसको बड़ी अच्छी तरह से छापा और उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो जो भी हमारे एमपी साहब ने कहा, मेरे ख्याल में दर्जनों अभी तक बस्तियों को आग लगा दी गई है, लोगों को मारा जा रहा है माइनॉरिटी के, और मुझे अफसोस है कि माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री खुद कह रहे हैं कि ये सच है कि झूठ है। ये बहुत अफसोस है। मैं कह रहा हूं कि ये मुद्दा, जिस मुद्दे को, जिस राज्य से संबंधित मुद्दे को इन्होंने उठाया है, वास्तविकता क्या है उसके बारे में मैं राज्य सरकार से जानकारी दूंगा। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए इस सदन के अंदर जिससे देश का माहौल खराब हो। इसलिए हमारी है कि हम सांप्रदायिक सौहार्द और देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखें। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हो, देश के सामुदायिक सौहार्द के माहौल में जहर घोलने का काम हो। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस सदन को सांप्रदायिकता फैलाने का मंच नहीं बनने देना चाहिए, हमें ये कहना है। और ये जो भाषण हुआ है ये जज्बाती ठीक है, लेकिन फैक्चुअल क्या है मैं जानना चाहता हूँ। आप जाइए, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर विल रिएक्ट नाउ।
Yeah. See, I have to make one observation that whatever a member says here should be taken as it is at the face value. Sir, you are right. Yeah, please. Yeah. Sir, you are absolutely right. Please. Whatever the members say on the floor of the House, we have to substantiate it. And I assure that I will write to the Chief Minister. As my Minister of State has also mentioned, the Parliamentary Affairs Minister, we will get the facts. Okay. And we will find out what is the problem. If this has happened, it is bad. But I only request the honorable members not to be so emotional. I know it's an emotional issue. Magar, just baat suniye. No, please. No, please. No, please. So what is this? मंत्री तो पूरी बात भी नहीं कहने. Why all of you stand up? आप समझते हैं? Yes. एक मिनट. जरा बैठिए. एक मिनट बैठिए. No, first listen. To verify. First listen to the minister. So sorry. All of you, please. On the part of the government. Failure, total failure on the part of minority affairs ministers. Now resume your. To protect the interests of the minorities. Please resume the seats. Protect the interests of the minorities. They need not to be there even for 1 second. Please resume the seat. Please resume the seat. No, Tabanji, sit down. I have called Sharad Yadavji. Sharad Yadavji. No, please. Now all of you sit down. Sit down. Sit down, sit down. Why are you doing this? Sharad Yadavji wants to speak. Please don't. No, please go back. Minister has said she will take action. She will bring the, find out the facts and, yeah, बोलिए. Sharad Yadav जी बोलिए. Sharad, अरे बाबा. अरे यू को. हुसैन दिलवाई. सर. अरे आयो. सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है. आएगा केवल तो हमारी आपसे अनुरोध है कि सेकुलरिज्म के नाम पर जो कम्युनलिज्म का खेल हो रहा है, हमारी आपसे अनुरोध है कि आप देश के सांप्रदायिक माहौल पर चर्चा करा लीजिए. आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा. देश के माहौल पे चर्चा करा लीजिए. पता लग जाएगा कि जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पर सियासत करते रहे, speak from the well, हाल क्या किया. I cannot hear, I cannot listen. If you go back to your seats and one of you stand up and say your points, I am ready to listen. I cannot take cognizance of what you are doing. It is wrong. Go back to your seat. The minister has said she will take action. Minister has already. Arey Balwai. Gulam Rasool. Why you are making it like Gulam Rasool? मंत्री जी ने बोला है एक्शन ले जाएगा. फिर क्या चाहिए तुमको? तो वापस जाओ. She has said she will take action. No, this is bad. This is very unfortunate. Very unfortunate. What are you? What are you doing? This is very unfortunate. See, government has given an assurance that the facts will be ascertained and action will be taken. Then why do you complain? Why do you shout? This is not justified. Unjustifiable.
अरे सुनो 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 सुनो, 1 second. Please. No, please. Hari Prasad, please. Now, let me ask you. See, no, I want to know. That's already. See, Mr. Ghulam Rasool has raised a point very correctly, and he has expressed the feeling, and all of you support. But government said government will inquire, ascertain the. Sir, I heard it. No, what is problem? I heard it. Don't shout. I said मैंने that. सुना. What are you talking? मैंने सुना. उन्होंने बोला. I said it. उन्होंने बोला एक्शन लेगा. मैंने सुना. Okay. It's 2 months. Elizabeth. Hey, sir. Sir, my point is, it is 2 months since this incident happened. The government has not taken any initiative so far. Now the Honorable Minister says she'll write to the Chief Minister to find out. The whole country knows what is the way. So right now, there should be penal action against them. The government must move, central government. This is not a state law and order subject. This is a communal issue, and a communal issue comes under the domain of a national issue. So it is not a state law and order issue. The government is guilty. Government is guilty of complicity for 2 months, and they must now. take action. इनका जो बयान है बहुत ही तिवारी, what are you doing? Tiwari, you are doing something wrong. सर, माननीय सीताराम येचुरी ने कहा आप लोग ना वापस जाइए. आप लोग वापस जाइए. आप लोग वापस जाइए. या प्लीज. ये घटना यानी इंसानियत और हर तरह की एक दिन का मामला नहीं है. दो महीने से सवाल को सारे देश में लोगों को मालूम है, और जिस तरह से जवाब दिया गया, यानी माइनॉरिटी अकलियत के जो मिनिस्टर हैं, आप जिस तरह से इसको कैजुअली ले रहे हैं, क्या आप लिखेंगे? हाउस कमेटी बनना चाहिए. हाउस कमेटी वहां जाना चाहिए सर, और इसकी इंक्वायरी करना चाहिए. You order the establishment of a house committee to investigate. डिप्टी चेयरमैन सर, मैं सीताराम येचुरी जी, शरद यादव जी जो बात, सीताराम येचुरी जी, शरद यादव जी, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो बात कही है, हम चाहेंगे कि इस पे शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो जाए और इसमें जो भी देश के हालात हैं, उससे पहले जो हालात थे और अभी के हालात, हम उस पर चर्चा कर लेंगे. पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है. Okay, please go back. All of you go back to your seats. अभी जाइए. Please go back to your seat. सर, पोस्ट बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद उस वक्त भी मैं शायद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, लेकिन लोकसभा में डिमांड हुई थी कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बम्बई जानी चाहिए जो राइट्स से, दंगों से साथ. एंड आई वाज वन, मिस्टर आलूवालिया वाज अनदर मेंबर. बहुत सारे जब के तो ये पार्लियामेंट की कमेटियां पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले दफ़ा भी हुई हैं इस तरह के हालात में. इसलिए हमारे साथियों ने जो मांग की है कि इस सदन की एक पार्लियामेंट्री कमेटी जानी चाहिए, ऑल पार्टी, और वो 2-3 दिन स्टडी करेगी क्या घटनाएं हुई हैं, और हम उसमें जाके और जो इसी सदन में रिपोर्ट देगी, और इसी सदन में हम मांग करते हैं. मिनिस्टर प्लीज. ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन का हम सम्मान करते हैं. अभी बहुत ही सीनियर लीडर्स, सीताराम येचुरी जी ने, शरद जी ने, सबने ये बात कही. कमेटी के बारे में हमने तो पहले कहा कि आप चाहे इस पे डिस्कशन कर लीजिए, हम तैयार हैं, डिस्कशन करिए आप उस पर. एक चीज. दूसरी चीज की
दूसरी चीज ये, क्या गुलाम नबी आजाद साहब जो बलियावी साहब ने आरोप लगाए हैं झारखंड की सरकार पे, उसको ऑथेंटिकेट करते हैं क्या? क्या जिस बात को बलियावी साहब ने बहुत इमोशनल ढंग से कह दिया कि पूरा झारखंड जल रहा है, पूरी तरह से लोग मर रहे हैं, क्या उसको आप ऑथेंटिकेट करते हैं क्या? अगर आप ऑथेंटिकेट करते हैं तो आप कमेटी बना लीजिए। क्या आप मानते हैं कि जो इन्होंने कहा वो सच है? ऐसे थोड़ी होता है कि कोई आदमी जो है वो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दे और स्वीपिंग स्टेटमेंट के आधार पर तय हो जाए। All the suggestions are noted. Noted. I am going to adjourn the house because the serious matter that is completely undermining the secular fabric of India. Yeah. So therefore, this has to be acted upon. Time for discussion is over. 2 months have gone by. No, please. I want what I've said earlier, I'm reiterating. You order a house committee, all-party house committee to be formed and let that go and investigate, report to this house in this session. I'll convey your feeling to the Honorable Chairman. I will convey the feeling to the Honorable Chairman. House is adjourned up to 12:00 hours. 12:00 hours.